اور اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں اسکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پرائیویٹ اسکولوں کو مختلف ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اسکولوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فیس ادا نہ کر سکنے والے کسی بھی بچے کو اسکول سے نہ نکالیں۔ کووڈ سے ماں باپ یا دونوں والدین کو گنوا چکے بچوں کو اسکول سے نہ نکالنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ اس سال بھی فیس میں کسی قسم کا اضافہ نہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ ٹیوشن فیس ماہانہ طریقے سے لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سرکاری اور خانگی اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے حکومت نے SOPs جاری کیے ہیں، جس کے مطابق اسکول کسی بھی اسٹوڈنٹ کو فزیکل اٹینڈنس کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتا ہے۔ آف لائن کلاسز میں شرکت نہ کرنے والے اسٹوڈنٹس پر کسی قسم کا جرمانہ عائد کرنے سے گریز کرنے کو کہا گیا ہے۔ اسکولوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فزیکل ڈسٹنس کے ضابطوں کے نفاذ کو سختی سے یقینی بنائیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ ریاست میں کووڈ کے تئیں سرکاری رویے سے سخت ناراض ہے۔ اس معاملے میں عدالت میں آج پھر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریاستی حکومت سے کہا ہے کہ وہ کووڈ کی تیسری لہر سے نمٹنے کا ایکشن پلان داخل کرے۔ اس ضمن میں عدالت نے ریاستی حکومت کو 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ محکمہ صحت سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ کووڈ ٹیسٹوں کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ داخل کرے۔ عدالت نے حکمت عملی طے کرنے کے لیے ماہرین کی میٹنگ نہ بلانے پر سوال اٹھائے ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ منصوبہ بندی اور طریقہ کار طے کرنے تک کووڈ کی تیسری لہر انتظار نہیں کرے گی۔ خبروں میں آگے بڑھتے ہیں۔ تلنگانہ میں BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ اگر BJP اقتدار میں آ گئی تو ریاست میں پاپولیشن کنٹرول کا قانون لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 2023 کے اسمبلی چناؤ میں BJP کو فتح ملی تو اتر پردیش کی طرز پر تلنگانہ میں بھی آبادی پر کنٹرول کا قانون متعارف کیا جائے گا۔ بنڈی سنجے سنگا ریڈی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ پرجا سنگرام یاترا کے 11ویں روز انہوں نے علاقے میں عوامی رابطہ مہم چلائی۔ لوگوں کو مذہب کے نام پر اکسانے کے الزامات کو بنڈی سنجے نے مسترد کر دیا۔ BJP یوا مورچہ کے تیجسوی سوریا نے بھی سنگا ریڈی میں جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے بنڈی سنجے کی اس یاترا کو تلنگانہ کی کرپٹ حکومت کے ساتھ جنگ قرار دیا اور کہا کہ اس یاترا سے عوام کو نئی توانائی ملی ہے اور امنگوں کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے۔ మతపరమైన రిజర్వేషన్ బిల్లును మోడీ జాగిరి అన్నావు, నీ జాగిరి కూడా లేదని చెప్పి మేము స్పష్టం చేస్తాం। అదే గద్ద మీకలి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నేను చెప్తున్నా 2020లో ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతుంది। ప్రభుత్వం ఏర్పడుతోట ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉత్తరప్రదేశ్ మాదిరిగానే మొట్టమొదటిగా జనాభా నియంత్రణ చట్టాన్ని పక్కా తీసుకొస్తాం, అమలు చేస్తాం। కేంద్రంలో ఉండేది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం। ఒక్కరు చాలు, ఇద్దరు హద్దు, ముగ్గురు అసలే వద్దు। ఇది మా విధానం, మా నినాదం। पर AIMIM के साथ शामिल होकर TRS की सरकार राष्ट्र विरोधी शक्तियों को एनकरेज कर रही है। CAA के खिलाफ असेंबली में रेजोल्यूशन पारित हो जाता है। पिछले 6 साल से लगातार माइनॉरिटी अपीजमेंट हर दिन हर रात हो रहा है। गाड़ी TRS की है पर ड्राइवर रजाकर है। हम सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता आज बंडी संजय जी को वादा करना है, हम सब के खून वही है जो सरदार पटेल जी में थे। हम सब मिलकर ये रजाकर राज को अंत करने का प्रण और वादा और संकल्प आज इस प्रजा संग्राम यात्रा के बीच में हम सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता लेना। آگے بڑھتے ہیں۔ صدر تحریک مسلم شبان محمد مشتاق ملک کی قیادت میں مختلف مذہبی پیشواؤں کے ہمراہ گنگا جمنی تہذیب کی بقا، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف آج چار مینار تا قلی قطب شاہ اسٹیڈیم اتحاد یونٹی ریلی کا انعقاد عمل میں لایا جانے والا تھا، تاہم پولیس کی اجازت نہ ملنے پر اسے ملتوی کر دیا گیا۔
इस सिलसिले में तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने सिटी पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया और कहा कि फिरका परस्त अनासिर को रैलियों और यात्राओं की इजाज़त दी जाती है और मुल्क में खुशहाली अमन व अमान के लिए खिदमत अंजाम देने वालों को मौके नहीं दिए जाते। आखिर हुकूमत हमसे खाइफ क्यों है? मुश्ताक मलिक ने सिटी पुलिस से इस सिलसिले में फौरी इजाज़त देने का मुतालबा किया है। अगर न दी जाए तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मोहम्मद मुश्ताक ने ये बातें कही। मुस्लिम शबान से पुलिस और फिर यहाँ की सियासत खौफजदा है। अब इसका ही सबूत है कि वो खौफजदा हैं। अगर खौफजदा नहीं है, हम कमज़ोर हैं, तो हमारे को परमिशन मिल जाता, हंसते खेलते मिल जाता। तो अब परमिशन नहीं देने की वजह यह है कि हमारी समझिए कि ताकत, हमारी क़ुव्वत, हमारी फॉलोइंग से वो परेशान है और उस परेशानी का हम इलाज इंशाल्लाह निकाल लेंगे। और ये रैली समझिए कि कैंसिल नहीं होगी, हम पोस्टपोन कर रहे हैं और एक 5-6 दिन में हम इसकी तारीख का ऐलान करेंगे। पुलिस को एप्लीकेशन जाएगा, नहीं करेंगे तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम इस रैली के लिए। आगे बढ़ते तेलंगाना में बीजेपी के तर्जुमान रामचंद्र राव ने दिग्विजय सिंह के बयान को तनकीद का निशाना बनाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में शरह पैदाइश कम हो गई है। रामचंद्र राव ने दिग्विजय सिंह के बयान को मुसलमानों की तौहीन करार दिया है। Whether Digvijay Singh is speaking as a spokesperson for the entire Muslim community in the country, I am very much surprised that such a senior leader speaking in this tone that Muslims will never outnumber the Hindus because their fertility has come down. I think it is almost an insult to the entire Muslim community. What is required is that whether who is outnumbering whom is not the question now. Whether Muslim community is ready to participate in the family planning and help the government in controlling the population, and therefore the question of population control acts are coming in different states because of this issue. So therefore what Mr. Digvijay Singh has said has to be clarified by Mr. Owaisi and other leaders who claim themselves to be Muslim leaders. मौलाना जाफर पाशा और मौलाना रहमुद्दीन अंसारी ने कहा है कि दारुल उलूम जामिया इस्लामिया शिवराम पल्ली की ज़मीन को सिर्फ मदरसे के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा और इस पर किसी किस्म की कोई दीगर तामीर नहीं होगी। 4 एकड़ ज़मीन को डेवलपमेंट के लिए देने की बातें हो रही थी, लेकिन कमेटी ने मशवरे के बाद अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। इन्होंने अहले खैर हजरात से अपील की है कि वो मदरसे की ताउन जारी रखें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मदरसे को बहुत सारे मसाइल का सामना है। मदरसे की आमदनी मुतासर होने की वजह से ही यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन अब वो मनसूख कर दिया गया है। मोहतमिम दारुल उलूम के मुताबिक गलत फहमियाँ दूर करने के लिए उन्हें वजाहत देनी पड़ रही है। ये इदारा मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हुस्सामी ने 1975 में कायम किया था। कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई थी कि यहाँ तामीर कुछ की जा रही है, तो उसी के सिलसिले में आज हज़रात को ज़हमत दी गई थी और ये तय किया गया है कि अब कमेटी में माशाअल्लाह जो बातें तय हुई है उसमें यह है कि जो डेवलपमेंट के लिए देने का इरादा किए थे वो इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो गया है। अब कोई डेवलपमेंट को नहीं देंगे, अहले खैर के ताउन से ही मदरसा चलाएँगे। मैं अहले खैर से ताउन की अपील करता हूँ और साथ में आप हजरात से ये भी गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए ताउन कीजिए। आपके बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ किसी गांव से आते हैं, किसी खेड़े से आते हैं और उन्होंने आके इल्म से हासिल करते हैं, तो उनका ताउन यकीनन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तेलंगाना में मछलियों की अफजाइश के नए सालाना मंसूबे की शुरुआत कर दी गई है। रियासती वज़रा टी हरीश राव और टी श्रीनिवास यादव ने जिला सिद्दीपेट के रंगा नायक सागर में मछलियों के बच्चे छोड़े। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि रियासत की मछलियों की मुल्क भर में तलब बढ़ी है और लोग बड़े पैमाने पर तेलंगाना की मछलियां खाने में रग़बत दिखा रहे हैं। वज़ीर फ़ाइनेंस का कहना है कि रियासत तेलंगाना अब मछलियों को दरामद करने की सूरत हाल से निकलकर बैरूनी ममालिक को मछलियां बरामद करने की पोजीशन में पहुंच चुकी है।
TRS MLC के कविता की तरफ से निजाम के सैलाब जदगान को मदद फराहम की जा रही है। इलाहाबाद के और भारी बारिश के नतीजे में नुकसान उठाने वाले गरीब खानदानों के लिए फूड कैंप लगाया गया है। यहाँ दिन और रात के औकात सैलाब मुतासिरीन को खाना फराहम किया गया। ऐसे लोगों ने यहाँ इस सहूलत से फ़ायदा उठाया जिनके घरों का सामान बारिश के पानी में डूब गया है। के कविता निजामाबाद में बारिश से पैदा हालात पर नजर रखी हुई हैं। उन्होंने सरकारी इंतजामिया के तवज्जुह से ज़मीनी सूरत हाल से वाकफियत हासिल की है। गंगा स्थान फेज़ 2 और दीगर नशीबी इलाकों में नालों में तेज़ बहाव के बायस मकीनों को नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से लोग 2 दिनों से खाने पीने से भी महरूम हो गए थे। मुमताज़ अफसाना निगार और उस्ताद प्रोफेसर बेग एहसास का इंतकाल हो गया है। वो 73 बरस के थे। कुछ दिनों से बेग एहसास अलील थे। उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन आज सुबह 10 बजे अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रोफेसर बेग एहसास हिंदुस्तान में उर्दू फिक्शन और फिक्शन तनकीद का एक अहम नाम है और इनके इंतकाल से उर्दू दुनिया एक अहम अदबी शख्सियत से महरूम हो गई है। बेग एहसास उस्मानिया यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में प्रोफेसर और बहैसियत सदर शोबे उर्दू खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने कई कौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनारों का इनेकाद अमल में लाया और ख़ुद भी उर्दू के हवाले से बैरून ममालिक का दौरा किया और हैदराबाद की नुमाइंदगी की। हिंदू पाक में उर्दू के मुमताज़ व मायानाज अफसाना निगार की हैसियत से बेग एहसास की शनाख्त थी। साहित्य अकादमी ने इन्हें इनाम से नवाजा था। मखदूम महिउद्दीन के बाद प्रोफेसर बेग एहसास हैदराबाद से साहित्य अवार्ड पाने वाले दूसरे अदीब थे। और प्रोफेसर बेग एहसास के नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा मस्जिद आयशा, पैरामाउंट हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी और तदफीन मुतसिल कब्रिस्तान में अमल आएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों प्रोफेसर फातिमा बेग परवीन और असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद नज़ीर अहमद का भी इंतकाल हो गया था। अब शहर हैदराबाद बेहतरीन असातिज़ा से महरूम होता जा रहा है। जिला महबूब नगर में नामालूम गाड़ी से टक्कर लगने के नतीजे में तेंदुआ हलाक हो गया। त्योरा कुरंदरा मंडल के चौधरी पल्ली के करीब ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है। कौमी शाहराह 1 से 167 पर कल शब तकरीबन 3 बजे नामालूम गाड़ी की टक्कर से इस जानवर की मौत हो गई। वाकये की इत्तला मिलने पर महकमा जंगलात के अहदेदार यहां पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अदाकार राना दिगोबाटी से ईडी ने पूछताछ की है। टॉलीवुड अदाकार मंशियात मामले में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में हाजिर हुए। ईडी इस मामले में मुख्तलिफ फिल्मी शख्सियात से पूछताछ कर रही है। अदाकार को मुख्तलिफ चैनल्स के नुमाइंदों ने ईडी के दफ्तर के बाबो दाखिले पर घेर लिया, ताहम पुलिस ने इनको इमारत की ऊपरी मंजिल पर वहां पहुंचा दिया जहां पर ईडी का दफ्तर वाक़ है। और इस वक्त एक अहम खबर, तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों के राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। दिल्ली पहुंचे थे तेलंगाना के सीनियर कांग्रेस के लीडरान और अजहरुद्दीन, सबिता इंदिरा रेड्डी और मधुयाश्की गौड़ की हुई है मुलाकात। राहुल से तेलंगाना के सीनियर लीडरों की मुलाकात को काफी अहम समझा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये सब के सब जो सीनियर लीडर हैं ये दिल्ली पहुंचे थे जहां इन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। और इसमें तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों की राहुल गांधी से मुलाकात हुई तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर इस मुलाकात की है। दिल्ली पहुंचे थे तमाम तेलंगाना के सीनियर लीडर और कांग्रेस के इन सीनियर लीडरों की दिल्ली में राहुल गांधी की मुलाकात का मतलब है कि कुछ अहम है। इसे पार्टी की खास तौर से तेलंगाना में जो पार्टी की सरगर्मियां इसको लेकर काफ़ी अहम माना जा रहा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश से।